Dear friends, my name is Indu Shekhar Mishra. I am an IITian and a retired bureaucrat, just retired from service in the month of January 2026. So, as mathematics is my hobby, I plan to start a YouTube channel to teach mathematics to students. So, today's topic, this is basically my first lecture, and today's topic is limits and continuity. Just for a better understanding, I will use a mixed language containing Hindi and English both. So, first of all, we have to define limits. What is limit? Suppose a function fx is there. एक फंक्शन fx है और हम उसका वैल्यू x इक्वल टू a पे टेस्ट करना चाहते हैं. तो लिमिट क्या होता है कि as the variable approaches a, what is the value of function fx, not exactly value of the fx, but what value fx is approaching, that is called limit. So to exist a limit of a function at a particular point, we have to test two things: what is its left hand limit and what is its right hand limit. So left hand limit or right hand limit as function approaches. So suppose x is equal to a is there. So from left side, what will happen? We will put the value x is equal to a minus, and for right hand limit x is equal to a plus, and we just test the value of function fx. If both are equal, we say the limit of the function exists at point a, at x is equal to a. अब हम आते हैं continuity क्या है. What is continuity? Continuity in fact define हम करते हैं कि if the value में limit at the point exists, मीन्स उस पॉइंट पे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है एंड दैट लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए. तो बहुत बार ऐसा केस आता है कि देयर इज ए ब्रेक इन द फंक्शन एट दैट पॉइंट. Means at x is equal to whatever value you take. So there is a break, and if the value of left hand limit and right hand limit are different, then continuity doesn't exist. So many times, to just plug the loophole, we define the function at that point also. Suppose just I'm taking an example. Function is x squared minus 1 divided by x minus 1. तो जैसे हम फंक्शन पे x पे 1 पे अप्रोच करते हैं, तो जस्ट यू पुट द वैल्यू. तो ये 0 by 0 फॉर्म का है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म. इस वजह से फंक्शन जो है इस पॉइंट x इक्वल टू 1 पे नॉट डिफाइंड. अगर हम इसका लिमिट लें तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पे इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं. तो ये आया एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1. So this x1 minus 1 and x minus 1 will go cancel out each other, and the remaining value is x plus 1. So whether we approach from left or right, हम लेफ्ट से अप्रोच करें या राइट से अप्रोच करें, वैल्यू ऑफ द फंक्शन नियर टू द पॉइंट x मीन्स कि व्हेन x इज अप्रोचिंग 1, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज अप्रोचिंग 2, because put x equal to 1, 1 plus 1 is equal to 2. But the moment we reach the point 1, it is not defined.
So to plug the loophole, we can define the function separately, that at means कि this function at x is equal to 1 is fx is equal to 2. So this means a discontinuity of the function at x is equal to 1 is basically removed, discontinuity, and function is defined as 2, so this function will remain continuous. So what is the, हमने अभी तक क्या सीखा कि कोई भी लिमिट है वो जैसे जैसे उस पॉइंट पे वेरिएबल अप्रोच करता है तो फंक्शन कहाँ पे अप्रोच करता है, फंक्शन का वैल्यू। तो पहले हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लिमिट से रिलेटेड, एंड देन इन नेक्स्ट क्लास वी विल हैंडल प्रॉब्लम्स ऑन कॉन्टिन्यूटी। तो अगर हम लिमिट्स पे जाएं तो इसमें कई तरह के प्रॉब्लम आते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाले प्रॉब्लम आते हैं, रेशनलाइजेशन के प्रॉब्लम आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं, देन एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम, दो तरह के प्रॉब्लम होते हैं इनके अलावा, कि एक है कि उस पॉइंट पे फंक्शन जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म ले लेता है, तो वो पॉइंट को हम चेक करने के लिए उसको सिंप्लीफाई करते हैं एंड देन लिमिट चेक करते हैं। दूसरा है कि फंक्शन का वैल्यू सीधा सीधा आ जाता है, सीधा सीधा आ जाता है तो उसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, वो सिंपल प्रॉब्लम होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं कि इफ फंक्शन इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल जो है ये ऑलवेज अपने रेंज में कॉन्टिन्यूअस होता है एंड उसका लिमिट भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एंड जब हम प्रॉब्लम करते हैं तो डिनोमिनेटर पार्ट जो है वो हम प्रॉपर वे में चेक करते हैं, क्योंकि जनरली डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है तो फंक्शन वहाँ पे डिफाइन हो नहीं पाता है। तो जैसे कि ये एफ एक्स है, अगर हम x पे 1 पे चेक करना चाहें तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट लें या राइट हैंड लिमिट लें, ये फंक्शन का वैल्यू एक ही आएगा, ठीक है। तो अब हम पहले कुछ फॉर्मूला डाल देते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, एंड पूरे मतलब जितने हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें उन फॉर्मूला की ज़रूरत होगी, एंड उसके लिए हमें सेपरेट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए जैसे हम कुछ फॉर्मूला लिखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x इज इक्वल टू 1। सिमिलरली इनवर्स फंक्शन में भी ये एप्लीकेबल है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x बाई x, और ये 1 होता है। इवन tan इनवर्स x के केस में भी ये सेम होता है। इसके अलावा अगर हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक ये हो गया, एंड एल्जेब्रिक में हम अगर आते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू a xn माइनस an बाई x माइनस a इज n माइनस 1, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, एंड जितने अलजेब्रिक आएंगे प्रॉब्लम उसमें हमें ये एज सच इसको हम यूज कर सकते हैं। एक और है लिमिट x टेंड्स टू 0 ax माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू log a। और भी अगर हम देखें तो और भी फॉर्मूला है जो टाइम टू टाइम हमें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा। अब कुछ प्रॉब्लम अगर हम सॉल्व करें तो लेट अस हैव द फर्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 1 हमारा है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 tan 2x डिवाइडेड बाई
पाई बाई टू माइनस एक्स और एक्स माइनस पाई बाई टू वट एवर इज। ठीक है, तो हम दोनों में से कोई भी ले लेते हैं। सपोज इसको कर दे एक्स माइनस पाई बाई टू। तो इसको सॉल्व करने का सबसे पहला हमें देखना होगा कि डिनोमिनेटर क्या है, एक्स माइनस पाई बाई टू। तो एक्स माइनस पाई बाई टू जनरली हम ये करते हैं कि नीचे वाला सिंप्लीफाई करते हैं ताकि कुछ कैंसल आउट होना हो तो हो जाए। तो अगर हम x माइनस पाई बाई टू को h ले लेते हैं तो when x टेंड्स टू पाई बाई टू तो h टेंड्स टू 0 एंड हम 2x को भी चेंज करें इसी के हिसाब से, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई दोनों साइड कर देते हैं। तो 2x माइनस पाई इज इक्वल टू 2h और 2x इज इक्वल टू पाई प्लस 2h, ये हमारा आया। अब इसको हम इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो न्यू लिमिट हमारा क्या हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0, tan 2x को क्या लिखेंगे, tan पाई प्लस 2h डिवाइडेड बाई h। अब यहाँ जैसे डिनोमिनेटर हम x माइनस पाई बाई टू देख रहे थे, ये सिंपल हो गया, h हो गया। अब प्लस ऊपर भी अगर हम न्यूमिनेटर में देखें तो पाई प्लस 2h, बिकॉज tan 180 प्लस थीटा इजिकल टू tan थीटा। 180 क्या है, पाई है। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ये tan 2h आ गया, tan 2h डिवाइडेड बाई h। अब यहां पे जो हमने फॉर्मूला देखा है tan x बाई x बराबर 1, तो जो ऊपर है वो सिमिलर हमें बनाना है। मीन्स कि यहाँ पर अगर tan 2h है तो नीचे भी हम 2h जब करेंगे तभी एक मतलब 1 की तरफ टेंड करेगा। तो इसे करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर और नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इस 2 को लिमिट से बाहर ले आए, क्योंकि इस 2 का मतलब चूंकि h से इसका कोई कनेक्शन नहीं है तो लिमिट से बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स लिमिट h टेंड्स टू 0 tan 2h बाई 2h। सो tan 2 ये 1 हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन जो है 1 हो जाएगा। तो लिमिट का वैल्यू जो आएगा आपको वो 2 आएगा। तो ये हमारा पहला प्रॉब्लम हुआ। अब दूसरा प्रॉब्लम मैं जो करने जा रहा हूं, ये जो आपने इसके पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखा कि लिमिट x टेंड्स टू a xn माइनस an बाई x माइनस a इज इक्वल टू n a n माइनस 1। सेम x माइनस a है तो लेट x माइनस a इज इक्वल टू h। क्या होगा, when x tends to a, h will attain the value of 0, means it will be tending towards 0। अब आप आए यहां पे, हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट, नया लिमिट हमारा क्या है, x माइनस h टेंड्स टू 0। अब आइए xn माइनस an, तो x बराबर a प्लस h हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस h पावर n माइनस an डिवाइडेड बाई h। नीचे डिनोमिनेटर हमारा सिंप्लीफाई हो गया। आप या तो फ्यूचर में पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे कि बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन। तो सपोज a प्लस बी पावर n है, हम इसे बाइनोमियल थ्योरम से अगर इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो ये क्या आता है, NC0, वो उसे है वो NC0 1 होता है। तो ये होता है an प्लस n an माइनस 1 b प्लस n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 a पावर n माइनस 2
एंड बी स्क्वायर्ड प्लस ये सिंपल आगे बढ़ता रहता है एंड लास्ट टर्म इट बिकम्स एन सी एन अगेन 1 एंड इट इज बी एन। अब हम यहाँ पे ए ये तो है ही, एच बी को हम एच की तरह लेंगे। हमारा लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0। यहां पे देखिए क्या हुआ, ए एन, एक काम करते हैं ए एन को कॉमन ले लेते हैं, यहां से ए एन कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा चेंज हो जाएगा 1 प्लस एच बाई ए पावर एन, इसे हटा दें, माइनस ए एन बाई एच। नाउ इस ए एन को भी बाहर ले लें, तो ये एन आप जैसे बाहर लेंगे इसको लिमिट से ही बाहर ले लें बिकॉज इसमें एच इन्वॉल्व नहीं है, तो एन को हमने बाहर ले लिया। तो अब हमें इससे एक्सपेंड करना है, तो ये आ जाएगा ए एन लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1 का पावर एन मीन्स की 1 प्लस एन, अगेन ए 1 है तो ये 1 ही रहा, अब बी मीन्स एच बाई ए प्लस अगला टर्म क्या होगा एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एच स्क्वेयर्ड बाई ए स्क्वायर, इसी तरह से बढ़ता जाएगा एंड लास्ट में मेरा जो ए एन है वो -1 रहेगा। नाउ आप देखें डिवाइडेड बाई एच, अब यहां देखें तो ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम एच को बाहर ले लें तो ये हमारा क्या आएगा, ए एन लिमिट एच टेंड्स टू 0, हम इस एच को बाहर ले लिए, बाहर ले चूंकि आप देखें कि अगले टर्म से सब में एच है तो इस एच को हमने बाहर ले लिया, तो हमारा अंदर क्या बचा एन बाई ए पहला टर्म, दूसरा हुआ n इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एच एक एच हमने कॉमन ले लिया एच बाई ए स्क्वेयर प्लस डॉट डॉट इस तरह से बढ़ता जाएगा और हर एक टर्म में एच होगा, वो हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया डिवाइडेड बाई एच। अब आप देखिए ये एच कैंसिल आउट हो गया, जैसे ही हम लिमिट एच 0 रखेंगे टेंड्स टू 0 तो यहां से लेकर के सारे टर्म 0 हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या ए एन इंटू एन बाई ए, इस ए को हम ऊपर ले जाते हैं तो ये इसका पावर 1 कम कर देगा ए एन माइनस 1, तो ये हमारा हो गया एन ए एन माइनस 1। ये हमारा जो फॉर्मूला हमने आगे भी यूज करना है एंड इसका अगर आप प्रूफ देखना चाहते हैं तो ये इसका प्रूफ हो गया। नाउ आई विल सॉल्व सम मोर क्वेश्चन एंड in fact in second class I will solve many problems of limit and continuity also. In continuity we don't have to do anything, just we have checked the limit, we have to check the limit, हमें लिमिट चेक करना है एंड देन उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू देखना है कोई एग्जिस्ट करता है कि नहीं, अगर वो वैल्यू लिमिट के बराबर आता है तो फंक्शन कंटिन्यूस है। और एक बात आप जान लें, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब है कि उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो भी लिमिट एग्जिस्ट कर सकता है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है दिस डजंट मीन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है देन लिमिट एट दैट पॉइंट एग्जिस्ट। नाउ एक और प्रॉब्लम, वो फॉर्मूला ही है, now just I am writing it, formula is limit x tends to 0 1 plus x to the power 1 by x is equal to e. Now let us solve it. x 0 है, हम जैसे रखते हैं 1
तो ये अगर डायरेक्ट हम 0 पुट करते हैं तो ये 1 आ जाता है, 1 का पावर इन्फिनिटी। अगेन इट इज़ नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, तो इसको हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब आप देखें इसको सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे। इसे करने के लिए अगला स्टेप, लिमिट x टेंड्स टू 0। हमने जो बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल किया था सेम वही करेंगे, कोई डिफरेंट नहीं। तो इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे आप जस्ट देखते जाइए। पहला टर्म 1 वैसे ही रहा, देन नेक्स्ट टर्म क्या होता है n। n यहां n क्या है 1/x, तो हमारा अगला टर्म होगा 1/x। n ये 1 ही रहा, ये उसके बाद इसका फर्स्ट ये आएगा x। देन नेक्स्ट टर्म क्या होगा n-1, तो n कितना है 1/x, n-1 डिवाइडेड बाई मैंने फैक्टोरियल 2 और उसको एक्स स्क्वायर्ड हमने रखा। अगला टर्म क्या होगा 1/x, 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब्ड, प्लस इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। अब आइए इसको और हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 1 तो वैसे ही रहा 1। अब आप यहां देखें ये x कैंसल आउट हो जाएगा, तो अगेन 1 बचा, प्लस अब यहां पे आप x का एलसीएम ले लें, तो ये क्या हुआ 1/x। यहां हमने x का एलसीएम लिया तो x 1 माइनस x हुआ इंटू एक्स स्क्वायर्ड बाई फैक्टोरियल 2। नेक्स्ट क्या हुआ 1/x को आप वैसे ही रखें, यहां एलसीएम लें तो ये वही आया x 1 माइनस x, इसमें भी आप एलसीएम लें, ये क्या आया x 1 माइनस 2x 1 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ये बढ़ता जाएगा। अब हम थोड़ा सा इसको और आगे देखें तो आप क्या पाएंगे, ये x है, ये x स्क्वायर्ड हो गया, इस x स्क्वायर्ड से कैंसिल हो गया। यहाँ पे 3 बार x है, x तो x क्यूब हो गया, तो 1 2 3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह आप नेक्स्ट टर्म में जाएंगे तो x का पावर 4 होगा, बट नीचे डिनोमिनेटर में भी x4 आएगा, तो वो हटता जाएगा, वहां 1 माइनस 3x तक आएगा। अब हम क्या करते हैं x का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो ये क्या हुआ 1 प्लस 1, ये 1 प्लस यहाँ पे आप देखें x जैसे आपने 0 पुट किया तो 1 बाई फैक्टोरियल 2 आया, इसमें क्या आया x0 आपने पुट किया तो 1 बाई फैक्टोरियल 3, अगला टर्म होगा 1 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 ऐसे इंक्रीज करता जाएगा। अब मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाता हूं, EX का एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस ऐसे ही x4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। आप क्या करें यहां x का वैल्यू 1 रख दें, तो E कितना होगा, E कितना आ गया E इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। हम क्या देख रहे हैं कि इसका लिमिट और E का सेम एक्सपेंशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट, दिस लिमिट इज नथिंग बट E। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है एंड
मैंने इसको किसी साल मैंने देखा है कि वो सीबीएसई के बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। एनीवे ये हमें पता होना चाहिए। एंड आगे कई ऐसे सारे प्रॉब्लम आएंगे जिनमें हमें बाइनोमियल थ्योरम पे एक्सपेंड करना पड़ेगा और उस एक्सपेंशन के बाद हमें रिजल्ट आएगा। तो एक प्रॉब्लम ये हो गया। अब मैं कुछ और प्रॉब्लम करता हूँ, वो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, कुछ अलजेब्रिक होगा, ऐसे, और कुछ रेशनलाइजेशन का होगा। तो अब आइए नेक्स्ट। एक रेशनलाइजेशन का प्रॉब्लम है लिमिट x टेंड्स टू 0 √1 प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। अब यहाँ पे आप देखें, जैसे आप 0 रखेंगे तो x का वैल्यू, तो न्यूमरेटर क्या होगा, √1 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, एंड देन अगेन x इज 0। तो अगेन इनडिटर्मिनेट फॉर्म है 0/0 का। बट हम इसे इनफैक्ट हमें तो लिमिट निकालना है। लिमिट निकालना है मीन्स कि x का वैल्यू एग्जैक्टली 0 पर नहीं निकालना है। ये जैसे जैसे 0 के बहुत ही क्लोज पहुंचता है तो फंक्शन का वैल्यू क्या है। तो इस केस में यहाँ पे हम इसे रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज कैसे करते हैं, न्यूमरेटर को हम रेशनलाइज कर रहे हैं। कई बार आपको डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को भी रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो आगे वैसा इनकाउंटर होगा प्रॉब्लम, वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसको देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, हम इसके कॉन्जुगेट मीन्स के √1 प्लस एक्स माइनस 1 है तो √1 प्लस एक्स प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा √1 प्लस एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई √1 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई। एक बात आप ध्यान देंगे कि जब हम प्लस वाला नीचे आएगा ना, तो उसमें क्या होगा कि वो 0 के फॉर्म में नहीं आएगा, वो समथिंग उसका कुछ वैल्यू आएगा। तो डिवाइडेड बाई एक्स, अब ब्रैकेट में आया √1 प्लस एक्स प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी। इसका मीनिंग ये हुआ कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हम इसे लिख सकते हैं। तो लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 a स्क्वायर मीन्स की 1 प्लस एक्स, अब b स्क्वायर मीन्स की माइनस 1 डिवाइडेड बाई x √1 प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ देखें ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर x बचा, ये x नीचे वाले x से कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या आया फाइनल, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 डिवाइडेड बाई √1 प्लस एक्स प्लस 1। अब आप वैल्यू 0 पुट कर दें इसमें। अगर हम जैसे 0 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 1, क्योंकि अब ये ग्राफ जो है ना कंटिन्यूअस है, कहीं कोई ब्रेक नहीं है, डिनोमिनेटर है 0 के बराबर नहीं आ रहा है। तो अब आप सिंपली इसका वैल्यू पुट कर दें, वही वैल्यू होगा जब x टेंड्स टू 0 होगा। तो यहाँ पे 1 प्लस 0 1 प्लस, इसका मतलब स्क्वायर रूट प्लस 1 मीन्स की 1/2। This is the answer. Now some few more problem. एक प्रॉब्लम है लिमिट x टेंड्स टू 0 कोसेक x माइनस कॉट x। अब आ जाइए, यहाँ पे देखें, कोसेक x को क्या हम लिख सकते हैं 1/sin x, एंड कॉट x को क्या लिख सकते हैं cos x sin x। तो अगर हम जैसे x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो cos x तो -0 हो गया, सिंपल 1/0, 1/0 इन्फिनिटी माइनस cos x sin x, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म हुआ। इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, आइए इसे भी देखते हैं। एक लाइन का प्रॉब्लम है ये, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/sin x माइनस cos x/sin x। क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, नीचे हमारा sin x आ गया, ऊपर आया 1 माइनस cos x।
अब आपको एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का कि cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आप आइए cos 2x को उधर लेके जाइए, तो 1 माइनस cos 2x कितना हुआ 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ 2x है, तो अगर हम x लिखते हैं तो यहाँ पे हमें x/2 लिखना होगा। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर x/2। नीचे साइन x है, आपको ये भी पता होगा कि साइन x साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x कॉस x। है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ 2x है, x लिखेंगे तो x/2 तो 2 साइन x/2 कॉस x/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, वो एक साइन चला जाएगा, तो ये सिंपली tan x/2 आएगा। x क्या है 0 जैसे रखेंगे tan 0 इज 0। ये प्रॉब्लम बिकॉज इसमें कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो गया। इसका लिमिट का कितना है वैल्यू 0। जैसे x 0 की तरफ मतलब अप्रोच करेगा, फंक्शन का वैल्यू भी 0 अप्रोच करेगा। देखते हैं 2-4 प्रॉब्लम और। अब आइए एक प्रॉब्लम है, ये भी फॉर्मूला ही है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 plus x, ln is log to the base e, ln 1 by x by x। अब आइए आप देखिए, यहाँ पे ऐसा हमें तो और कुछ दिख नहीं रहा है, इसको दो तरीके से करते हैं, या तो हम इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है क्या कि हम लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी लगाएं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई x ln 1 प्लस x। अगला स्टेप क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टी एक है कि log a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 log a। इसका मतलब कि ये दोनों सेम है, तो ये 2 को हम अगर log के अंदर ले जाएंगे तो ये यहाँ पे इसके पावर के रूप में आएगा। तो यहाँ पे 1 बाई एक्स को हम log के अंदर ले आते हैं, तो क्या बन जाएगा, ln 1 प्लस एक्स 1 बाई एक्स। जस्ट प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने देखा था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स का पावर 1 बाई एक्स ई होता है। अब अगर ये प्रॉपर्टी हम इसमें लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ln e, ln ये बेस में, तो लॉ का एक और प्रॉपर्टी होता है कि log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1। यहाँ ln मीन्स नेचुरल लॉग में हम बेस e ही होता है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 1। ये प्रॉब्लम आपका कंप्लीट। अब एक और है, वो भी फॉर्मूला ही है, उसे हम करते हैं। प्रॉब्लम है लिमिट x टेंड्स टू 0 ax माइनस 1 बाई x। अब आप यहाँ देखें, जैसे हम x 0 रखेंगे तो एक एनीथिंग किसी के चीज के ऊपर पावर 0 मीन्स 1, तो a का पावर 0 1 माइनस 1 यही 0 हो गया, नीचे भी 0 हो गया। इसको करने का क्या तरीका है कि
ऊपर का जीरो पहले आप ये करें, कैसे रिमूव करेंगे। अगर हम ax माइनस 1 बराबर h ले लेते हैं, अब देखें जैसे x 0 की तरफ जाएगा तो h का वैल्यू कहाँ टेंड करेगा। ये देखिए h किसको अप्रोच करेगा, यहाँ पे a का पावर 0, 1, 1 माइनस 1 मीन्स 0। ये प्रॉब्लम किसमें बदल गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 ax माइनस 1, ये कितना हो गया h डिवाइडेड बाई, अब आप आइए x कितना है, हम ax को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस h। अब आप log ले लीजिए, और log ले लेंगे तो क्या होगा x log a, मीन्स कि log ax, x को हम फिर बाहर लेते आए, मीन्स कि जैसे ऐसे आप लिखें log ax बराबर log 1 प्लस h। तो अगर ये x इधर आ जाएगा तो x log a बराबर log 1 प्लस h, और x इज इक्वल टू 1 बाई log a log 1 प्लस h, ये यहां लिख दें 1 बाई log a log 1 प्लस h, ये log a ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा, बाहर ही करते हैं, आपको उससे अंतर नहीं पता है, log a टू द बेस e, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसे हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई log 1 प्लस h बाई h। ये प्रॉब्लम हमने अभी सॉल्व किया है। इसका वैल्यू क्या आता है, इसका वैल्यू क्या आता है, ये आता है 1, तो 1 आता है तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रॉब्लम शुरू किया, तो ये आ जाएगा log a एंड ये पूरा इंटू 1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम हम और देखते हैं, अगर मिल जाता है। चलिए एक दो प्रॉब्लम और है, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। ये थोड़ा सिंपल प्रॉब्लम है, जिसमें फैक्टराइजेशन का हम ये करेंगे। ये है प्रॉब्लम प्रॉब्लम है लिमिट x टेंड्स टू 3 x4 माइनस 81 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। अब शुरू करते हैं, पहले x का वैल्यू 3 हम रखते हैं, तो 3 टू द पावर 4, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, तो 81 माइनस 81 0 हो गया। अगर हम नीचे x का वैल्यू 3 रखते हैं तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और यहाँ 5 3 जा 15, 9 15, 2x स्क्वायर में 5 माइनस 3 है, ये भी 18 आ गया, तो ये 0 बाई 0 का फॉर्म है। ऐसे केस में अगर x टेंड्स टू 3, अगर ऐसा केस है तो ऐसे केस में आप ये समझ लें कि x माइनस 3 जो है वो फैक्टर है, न्यूमरेटर का भी एंड डिनोमिनेटर का, तो हमें जस्ट फैक्टर आउट करना है x माइनस 3 को। ऐसे केस में यही होता है कि जो x का वैल्यू, वेरिएबल का वैल्यू जो टेंड करता है जिस पॉइंट को, एंड अगर 0 बाई 0 का फॉर्म आ रहा है, इसका मीन्स कि वो उसका एक फैक्टर होगा। तो यहाँ x टेंड्स टू 3 है तो x माइनस 3 ऊपर फैक्टर होगा, नीचे भी होगा वो। अब आइए, अब इसमें सिंपल हम फॉर्मूला लगाते हैं, ये x4, इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे इसको आप ही करें 3 2 जा 6, तो इसको हम लिख सकते हैं
2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x, 6x प्लस x, ये 5x हो गया, प्लस 3 माइनस 3। अब आए ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9। नीचे हम ये करें तो यहाँ 2x कॉमन लेते हैं तो 2x, तो ये क्या बचा x माइनस 3। देन यहाँ पे 1 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 3। इसे हम आगे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9 तो वैसे ही रहेगा, सॉरी यहाँ मैंने लिमिट लिखना छूट गया, लिमिट x टेंस टू 3, लिमिट x टेंस टू 3, तो यहाँ भी लिमिट x टेंस टू 3, एक्स स्क्वायर प्लस 9, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 9 को अगेन हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 x माइनस 3, नीचे सेम आया 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। अब देखें आप ये दोनों फैक्टर x माइनस 3 को आप हटा दें, अब क्या बचा, लिमिट x टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1, वैल्यू रखें x का 3, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर 9 प्लस 9, यहाँ ब्रैकेट में 3 प्लस 3, तो ये 6 डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1, तो x का वैल्यू 3 रखें तो 3 टू 6 और प्लस 1 7, ठीक। अब 9 प्लस 9 18 इंटू 6 बाई 7, 18 6 54 108, तो ये आया 108 बाई 7। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई थिंक हमने काफी कर दिया है। एक प्रॉब्लम मैं सोच रहा हूं और मैं करूं, आज इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में मैं कुछ लिमिट के अच्छे प्रॉब्लम के साथ आऊँगा एंड मोस्ट प्रोबेबली अगला जो मेरा होगा वो कल शाम को मैं रिकॉर्ड करूँगा और संडे को ही अपलोड कर दूँगा। तो दोस्तों अच्छा लगा, क्योंकि हॉबी को परस्यू करना एंड टाइम पास करना ये बड़ा ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ बैठे बैठे आदमी बोर हो जाता है। एंड अगर ये किसी के लिए कुछ फ़ायदेमंद हो तो ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ और मैथमेनिया करके मेरा यूट्यूब चैनल है एंड मैं मतलब आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी कमेंट, अगर कोई भी आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं मुझे ज़रूर सजेस्ट करें। थैंक यू वेरी मच।